So welcome to 94 day of 365 day journey. In this journey, I'm documenting my life. As you know that I'm recording every single day where I share in things. For example, what I do today and जो आज मेरा experience कैसा रहा. What is what the most important thing I have done today और क्या मैंने challenges face किए और कैसा मेरा दिन रहा. And what I learned from the book or the podcast and AI and what's the new update of current affair and geopolitics. So these are points we discuss every single day. If you are joining our journey, you can join. So our target is earning 1 million in 1 year. This is like the I have took challenge myself. Me versus me. तो आज का हमारा टॉपिक तो कुछ खास नहीं है क्योंकि yesterday was not that much okay, but there are some things I would say which is you gonna like and you will inspire from that. So first of all, I would say thank you so much for coming this video and watching this one. And this video will not be this video is not scripted. Video is unscripted, not editing one. This is just simple and just this is like kind of my point of view to see the things and I discuss in this video. It's kind of like you can say daily update or whatever you can think or whatever you can call. आज का दिन कैसा था? I would say the day was okay, but there was some circumstances has come that I was failed to on that. But I literally enjoying the way or what I'm doing nowadays because we took the challenge for the earn 1 million in 1 year, and that's not actually big deal, and this is also not easy, and it gonna help you to think more clear how you making better yourself. Yesterday I was watching one of the video of the podcast था जो आपको पता होगा एटॉमिक हैबिट द ऑथर है जो राइटर है क्लियर क्या नाम उनका नाम याद नहीं आ रहा डेविड क्लियर समथिंग उनका नाम है दैट इज़ आई वाज वाचिंग हिम एंड आई थिंक मैंने हाफ ऑफ पॉडकास्ट देखा एंड दिस वाज वंडरफुल. Last few days I am not able to watch all of the podcasts which I am discussing, but there are some point I just watch and just discussing in this video. And in that he was discussing many things like how we can change our life with this one habit, or you can change yourself that changing every single day or making yourself the better 1% every single day. Can you imagine when you complete 1 year, that year has 365 days, and you can imagine how would you the better. अगर मैं अपनी बात कहूँ दैट्स आई एम लिटरली बेटर. कैन यू सी माई फेस हाउ आई एम गेटिंग लाइक ग्लो. इट्स लाइक आई एम जस्ट किडिंग बट इट्स ए ट्रू. जब मैं बताऊँ आपको, people are suffering from the porn addiction. People are suffering means I'm saying that they are addicted, they are trying to stop but they are not able to doing the stop. They are suffering from what's called masturbation. They are things. देखो जब तुम्हारे अंदर बैड हैबिट्स है ना, यू आर ट्राइंग टू क्विट दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक रूटीन योर डे एंड यू नीड टू फॉलो दैट. इफ़ यू नॉट एबल टू फॉलो योर रूटीन यू विल लूज एवरीथिंग. टुडे जस्ट जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं मोस्टली एक्सरसाइज करता हूँ तो जिम जॉन को सुनता हूँ. अगर आप सुनोगे तो मुझे लगता है दैट यू गोना लाइक हिम एंड योर लाइफ विल चेंज. और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को चेंज करने में थोड़ा सा हाथ उनका भी है. क्यों? जिस तरीके से वो स्पीच देते ना, जिस तरीके से द वे ही स्पीक दैट्स लवली. वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे अटैक करेगी जिससे तुम अपने आप को लाइक चेंज करने पे मजबूर हो, जिसको इम्पल्सिव बोलते हैं. तो इसकी वजह से दैट्स समवेयर आई चेंजिंग माई लाइफ. और मैं ट्राई करता हूँ एवरी डे लर्न समथिंग एंड चेंज समथिंग. कल क्या हुआ, कल नहीं आज क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा है मेरे जो टीम में, बिकॉज अभी टीम मेरा छोटा हो चुका है इन द हॉस्पिटैलिटी आई एम वर्किंग रेस्टोरेंट देयर इज द. सो वहाँ पर एक टीम मैंने जो टीम एक मेम्बर आया दैट ही आई वाज जस्ट आस्किंग व्हाट यू डू एंड हाउ लाइक योर कॉलेजिंग स्कूल कितना है, एंड ही टेलिंग मी दैट एवरीथिंग एंड ही सेड आई हैव लर्न अबाउट द SEO एंड दिस इज़ द नाइस स्किल्स एंड एवरीवन लाइक. मैंने बोला फिर तुम इस पर काम कुछ नहीं कर रहा, जॉब अप नहीं कर रहा. दैट ही सेड आई हैव द यूट्यूब चैनल, देयर एज 9,000 ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर थे उसके और मोनेटाइज भी हो चुका था. इवन द पेमेंट भी आया था, बट पेमेंट फर्स्ट पेमेंट वॉज द $65 समथिंग. तो उसके घर वालों ने उसको इतना पुश किया कि उसने चैनल को डिलीट कर दिया. लाइक दिस इज हैपन 2 or 3 years away because 1 year he is working here.
तो उसके घर पे इतना मतलब प्रॉब्लम्स था एंड ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प दैम एंड इंस्टीड ऑफ दैट ही डिलीट द चैनल। मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, उस बंदे ने डिलीट कर दिया है। दैट्स यू नो आई डोंट नो व्हाट नीड टू से अबाउट द हिम, but he has a good mindset that he said I'm just looking the where I can stay 1 year or 2 years to job here, and then I will start doing again same thing, but I need just a little bit of the push me someone। I mean मैंने बोला कि that's okay fine, whatever happen that we can't change, but now you have the 1 year, just start doing things and you can like। फिर उसके साथ मैं डिस्कस करने लगा उसके साथ। आई जस्ट टेलिंग हिम दैट आई हैड अ वेबसाइट एंड आई हैव यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम, बट आई एम नॉट एबल टू, it's not able to that I'm not getting that much of view। तो उसने बोला and I told him that I have a ebook also of the communication, that's a 21 days journey, and if you read that you're gonna like too much things and that will help you to improve your communication। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन के ऊपर ये था कि अगर तुम किसी से कुछ पूछ रहे हो, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो और यू समवन इज डूइंग लिटिल मिस्टेक, तुम उसको कैसे समझाओगे? इस स्टडी व्हाट हैपन, देयर वाज समथिंग हैपन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट जो थॉट्स मेरे थे ना, मैं उसको सोच रहा था उसके ऊपर। अगर तुम नॉर्मली कोई बंदा मिस्टेक कर रहा है और तुम उसके पास जाते हो दैट सर यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग, तो वो शायद ऑफेंडेड फील करेगा इफ़ यू नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो, अगर मैं ही कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ एंड जस्ट नॉर्मल बंदा और नॉर्मल एडनरी और जो भी तुम्हारे साथ है या तुम्हारा रिलेटिव नॉन रिलेटिव एंड आई कम टू आस्क यू दिस इज यू डूइंग रॉन्ग थिंग, बट द डिफरेंट वे यू कैन से ब्रदर यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नाइस थिंग, बट इफ़ यू रिड्यूस दिस थिंग इट बिकम द मोर बेटर एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। तो शायद मुझे लगता है वो ऑफेंडेड फील नहीं करेगा और जो तुमने बोला वो उस पर वो अप्लाई भी करेगा। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज़ चेंजिंग माई लाइफ। अगर मैं किसी से मिस्टेक कोई कर रहा है तो मुझे उसकी डायरेक्टली आई डोंट नीड टू गो एंड टू आस्क हिम दैट डोंट डू दिस वन, नीड टू चेंज। नो, द कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ स्पीक, दिस इज़ ओनली कम्युनिकेशन, दैट्स इट। आज जिस दिन तुम इस चीज़ों को समझ गए ना दैट यू बिकम द कम्युनिकेटर, दैट्स इट। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया को चेंज कर दो फलान वगैरह, नो, देयर इज़ नथिंग, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू स्पीक सो सामने वाला बंदा हम ना फील करे, दे डोंट फील द ऑफेंडेड। तो इसी तरीके को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन पहले आई वॉज लिटरली डे ऑफ संडे आई थिंक, यस, सो देयर वॉज अ पीक आवर बिकॉज देयर 2 स्टाफ, मी एंड माई 2 अनदर स्टाफ, and there was many tables, so I was not able to pick up the call. My mom is calling me and she I cut 2 or 3 times, she again calling, so I just take time, I just call her sorry, and पूछा क्या कुछ emergency है क्या, why you calling again because I'm cutting the call, just second। तो उसमें क्या हुआ कि अम्मी से मैंने बोला, फिर मैं रियलाइज़ हुआ अगर मैं इसी बात को अलग दूसरी तरीके से कहता शायद उनको बुरा भी नहीं लगता और शायद वो फील भी अच्छा करती। तो मैं इस बात को कैसे कह सकता था, आई वुड से दैट कि अगर आपकी इजाज़त हो थोड़ा सा काम कर लो बिकॉज वी आर नाउ बिजी, मैं शाम को कॉल करता हूँ आपको फ्री होके। तो उन्होंने देखो जिस टाइम मैंने बोला उनको कि आप इमरजेंसी कुछ इसलिए कॉल कर रहे हो क्या, कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है इमरजेंसी तभी तुम 2-3 बार कॉल कर सकते हो, अदरवाइज तो लाइक मैं खुद और नॉर्मली कॉल करता हूँ डेली। तो प्रॉब्लम ये हुआ मेरा उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट था, सो आई डिड नॉट कॉल ऑन द टाइम बिकॉज एवरी डे आई डू द कॉल, सो दे वर वरिंग दैट वाई आई डिड नॉट कॉल दैम, सो दैट्स अ थिंग दैट्स अ हैपनिंग। सो उसके बाद क्या हुआ कि दैट फिर मैंने उनको कॉल किया, फिर मैंने रियलाइज़ किया दैट आई थिंक आई शुड से द बेटर वे, सो दे डोंट फील, उन्होंने फील शायद नहीं किया होगा, आई बिलीव इन दैट, बट वो और अच्छे तरीके से उस मैसेज को पास अच्छा लगता है उनको। अगर मैं इफ़ आई से दैट अम्मी अगर आपकी इजाज़त थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा बिजी हूँ, मैं शाम को फ्री कॉल करूँगा, तो वो कुछ बुरा भी नहीं मानते, बुरा तो नहीं माना, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर टॉकिंग विद योर कलीग्स। एंड देखो कम्युनिकेशन क्या होता है तुम्हारी, जैसे मैंने पहले ही बताया, आई टोल्ड यू मनी टाइम दैट कम्युनिकेशन इज़ द वे टू मेक यू वेल्थी, मेक यू लूजर, मेक यू लाइक पुअर। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो तो मैं कल ही तुम्हारी अमीर बन जाऊँ, नो, द कम्युनिकेशन ऑन द वे ऑफ डिलीवरिंग योर मैसेज, वे ऑफ डिलीवरिंग योर वर्ड्स, वे ऑफ डिलीवरिंग योर थाट्स, दैट्स अ कम्युनिकेशन। तो इसी वजह से फॉर एग्जाम्पल कल मैं बात कर रहा था तो मैं आई जस्ट कॉल माई अब्बू
एंड व्हाट हैपन, सो ही वाज मेरी सिस्टर के साथ एग्ज़ाम दिलाने गए थे. सो ही इज़ सिटिंग आउटसाइड द कॉलेज एंड देयर वाज वन ऑफ गाय हु इज़ माई फ्रॉम माई नाइबर एंड ही वॉज नॉन मुस्लिम. तो हम मोस्टली मैं जब कॉल करता हूँ, मेरे दोनों भाई कॉल करते हैं, ग्रुप कॉल हमारा जो फैमिली, वो सारे लोग कनेक्ट पर बात करते रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, जो जिस तरीके जिसके पास टाइम होता है, तो मोस्टली अच्छे से बात करते हैं. तो उस टाइम बात कर रहे थे. देन आई वॉज टॉकिंग टू माई अबू एंड माई ब्रदर ऑल्सो ज्वाइन एंड देयर वाज द गाय अनदर आई एम टॉकिंग अबाउट हिम. सो उसने ही वाज टेलिंग, मैंने पूछा उनको किसका एग्ज़ाम दिलाने आया, कौन है. तो ही वाज टेलिंग दैट इज़ द एल्डर सन हु इज़ द लास्ट सन एंड उन्होंने बोला, तो मेरे भाई ने नॉर्मल एकदम पटन कर दिया कि वो तो फेल हो गया था. तो मैंने लगा व्हाट द हेल इज़ दिस, वी आर कम हियर टू टॉक नॉट समबडी ऑफेंडेड. अगर ठीक है, फेल इज़ नॉट अ बिग डील, एवरी वन फेलिंग इन दैट, एवरी वन इज़ नॉट सक्सेस इन द लाइफ. मैंने ऑन द स्पॉट आई सेड, मैंने बोला उस अपने भाई को, डोंट से दिस अगेन एंड दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, दिस इज़ बैड हैबिट. फिर उनको मैंने एक हदीस बताई. हदीस में क्या है, मैं एक दिन सुन रहा था अजमल कादरी साहब को, अजमल रजा कादरी साहब को, जो पाकिस्तान से हैं. सो व्हाट हैपेंड दैट ही वाज टेलिंग द हदीस है कि उसमें बताया गया है कि अगर तुम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हो, अगर उसके अंदर 2 प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल 2 तरीके की प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, दिस काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, तो तुम पब्लिक में बोल रहे हैं दैट्स यू आर ऑफेंडिंग हिम और यू आर जस्ट मेकिंग हार्मलेस. मतलब उसको नहीं बोलना चाहिए. तुम उसको पर्सनली बोल सकते हो बट यू कांट से अबाउट द पब्लिक, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट डाउन हो रही है. दूसरा बंदा, एक और दूसरा बंदा, उसके अंदर बैड हैबिट्स है एंड दैट हैबिट इज़ हार्मिंग द अराउंड द पीपल, सराउंडिंग द पीपल, तो तुम उस हैबिट को पब्लिकली बोल सकते हो. देयर इज़ नो एनी थिंग्स. तो उसी को मैंने एग्जाम्पल देते हुए अपने भाई को बोला दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ना तुम्हारा घाटा हो रहा है ना मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो वाई यू पॉइंट आउट इन द थिंग्स विच इज़ नॉट रिलेवेंट आस. ठीक है, इज़ अ फेल. तो दीज आर पॉइंट आई डिस्कस टुडे एंड देयर वाज दिस इज़ अबाउट माई डे. एंड अबाउट अ बुक, इफ़ आई से आई विल टेल यू टुमारो, दैट्स अ रियली वंडरफुल बुक. एंड अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, वर्ड ऑफ स्टिक. दिस यू गोना लाइक. एंड जिस तरीके से भी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लेता हूँ, जिस तरीके से मेरा माइंड सेट, थॉट्स चेंज हो रहा है, दैट यू कैन एन्जॉय. अभी मैं जिस तरीके से बताया, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम गोइंग टू बिकम. और इंशाल्लाह आई विल बिकम मोर देन यू कांट इमेजिन. It's not about that I'm going to earning trillions dollar, but this not way. But I want to understand things that how we should speak, how we can communicate, and how we can deliver our message. This is only I want to help you. So thank you so much for watching this video. We will come back tomorrow with a new topic, with a new journey topic. And अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप सोच रहे हैं इसको बात करना चाहिए, तो यू कैन लीव द कमेंट. आई विल डिस्कस. रिलेटेड अभी कम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए. उसके बाद अगर दूसरा है तो शायद उस पर थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अभी ये हमारा टारगेट है ओनली फोकसिंग ऑन द कम्युनिकेशन. अगर तुम्हारा टॉपिक है निगोसिएशन, सेल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड द बॉडी लैंग्वेज, एनीथिंग रिलेटेड ऑफ द कम्युनिकेशन, यू कैन ड्रॉप. शायद मैं उसको नहीं कवर किया हो तो मुझे भी उससे लर्निंग मिलेगा थोड़ा बहुत. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू टुमारो.